ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦਵੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंधना सिर चरणन पर तार। तो सो नहीं दाता को मोसो न भिखारी दीन। तो सो न दयाल दुखी मोसो न अलाई है। मोसो न है अकृत कण तो सो उपकारी ना है। मोसो न अनाथ नाथ तो सो ना बताइए। औगनी ना मोसो को गुणवान तो सो नहीं। जाप तब व्रत मोह में एक नहीं पाई। कभी आयो है शरण गहे ताए के चरण। गुरु तारण तरन निज हाथ दे बचाइए। गोविंद सिंह गुरु गत दायक आन की आस नहीं मन राई। चातृक चीत मुहूर मुहूरट सुबांध दिदार कवे हे पाई। जियो पतंग स्नेह की डोर बदा डग डोर सोले हो मिलाई। सिंध होता सन है पव की गत मोहि मया कर लिहो बचाई। मुकूच रह शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। हर की बड़ियाई हाँ आख न साकां। हाँ मूर्ख मुग्ध नीचान। जन नानक को हर बख्शल है मेरे स्वामी। शरणागत पया अजान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी दी साजी निवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आप सरबत माई भाई इस स्थान के नेड़े तो अथवा दूर तो शरदा भावना सहित चल के गुरु नानक दे दरबार विच पहुँचे हो। जिथे दसों पातशाहियों की आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी बाबत गुरु साहिब दे वचन हैं कि गुरु दर्श जे देखना श्री ग्रंथ दरसाए। बात करन गुरसों चहे पढ़े ग्रंथ मान लाए।
जो मुझ वचन सुनन की चाहे, ग्रंथ विचार सुनो चित लाए। मेरो रूप ग्रंथ जी जान, या मैं भेद न रंचक मां। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਸ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੁਹੰਸਾਂ ਕੱਖਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਿਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਹੰਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ 6 ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਨਿਆਸੀ 10 ਨਾਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਤੇ 10 ਨਾਮ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ। 4 ਧੂਣੇ ਹਨ, 6 ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਵੀ 5 ਕਕਾਰ ਮੇਰੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋੜ ਲਏ, ਪਖੰਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ 4 ਧੂਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ, 6 ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਬਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਮ ਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਖਤਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਖਤਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। 4 ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਜੋ ਲਿਬਾਸ ਸੀ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਬਸੰਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਖੈਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਭੇਖੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੇਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ।
फिर तुसी गुरु नानक नूं छड्ड के वखरे हो गए। अग्यान है, अणजाणपना है। ये दूसरा महाराज साहब जी ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। निर्मल पंथ की सिरजना की। जे गुरु नानक साहब नूं किसी ने पुछया सिद्धा ने तुहाडी मत का नाम की है जी, तो गल्लां दो ही सी जड़ियां करदे सन पातशाह। एक तो निर्मल पंथ, दूसरा कहते सी अद्वैत मत है साडा। ये गुरु नानक साहब महाराज दे। फिर बाबा श्री चंद साहब जी ने वो मौका संभालिया जदों भेख उदासी सकल उतारा। ये भी समा आया एक उतार दिता गया। तो बाबा श्री चंद जी ने वह बाणा मंग लिया, ये तुहाडी उपरामता, तुहाडी विरक्तता। असी तो तुहाडे घर दो पुत्रां ने जन्म लिया, मेरे भराता छोटे, और मैं ऐसी विरक्तता रखांगा मैं शादी भी नहीं करावांगा। ये साढ़े 9 मास के रिश्ते दीयां गल्लां जिहड़े दिन पर दिन साढ़े रिश्ते टुटते जा रहे हैं। सो इसे संप्रदाय के सांझे महापुरुष साढ़े बड़े सत्कारयोग संत बाबा हाकम सिंह जी निर्मल संप्रदाय के मुख सकत्तर के तौर पर सत्कार है, जिन्होंने इस स्थान के महापुरुष बाबा महेंद्र सिंह जी, उस तो बाद संत बाबा गुरमुख सिंह जी महापुरुष नौजवान पीढ़ी के, उन्होंने सहयोग देने वाले, जिन्हों के कोल विद्या का बहुत खजाना है, भाई जसवीर सिंह जी ज्ञानी जी, और इन्हों के होर साथी तो तुसीं गृहस्थ प्रणाली नाल संबंध रखने वाले इन्हों के सहयोग। तो संप्रदा राड़ा साहब के विचों बख्शियां प्राप्त करके संत रणजीत सिंह जी कढ़ाणी वाले, जिन्होंने आप जी को कीर्तन सुनाया और सुंदर विचारां भी सुनाई। शास्त्री जी महाराज संत कमलजीत सिंह जी और संत बाबा हरबंस सिंह जी उस स्थान पर जिथे संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआणे वाले महापुरुष जिस डेरे में पढ़े सी, उत्थे दे महंत साहब जी। संत बाबा पंजाब सिंह जी तुहाडे अपने इलाके के महापुरुष, ते होर जिन्ने भी सत्कारयोग महापुरुष, आप सारे विद्वान हो, सूझवान हो, ते जिहड़े साड़ियाँ संप्रदावां दे विचों संसार दीयां डिग्रियां भी PhD तक डिग्रियां जिहड़े कुछ कीतियां कर रहे हैं, उन्हां दे विच शास्त्री जी महाराज जी, संत दर्शन सिंह जी हैं। आउण वाला साडा भविख है कि जिहड़े लोग कहंदे सी ये चोलियां वाले अनपढ़ हुंदे ने, साडे उत्ते बड़े दोहरे बनाए गए। मैं बचपन दे विच कोई तकरीबन 19-20 साल का सी जदों मैं वो दोहरा सुनिया सी। एक मगर सिंह सी बालेवाल दा, वो दोहरा मेरे हुण तक याद है। बड़ी चुस्ती जी दे नाल कटाक्ष वरता, कहंदा आह किहड़ा पंथ, कहंदा आह किहड़ा पंथ जी दे अनपढ़ महंत लैके चिट्टी चादरी मल विच विद्वानां दी नरादरी। इस तरह के दोहरे बनाए सी। और पंडित दाखा जी ने तो खुले तौर पर यह गल कही पंडाल दे विच जदों सिंह सभा लहर चल गई, गुरुद्वारा सुधार लहर चली, उहदे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जन्म लिया, उहदे चों श्रोमणी अकाली दल 29 दिनों बाद जम पिया। वलंटियर भर्ती करे सी, अगनुआई घर वार की मालक बन के बैठी। पंडित दाखा ने कह दिता सी, कहंदा कविता खा गई कथा नूं। ये कटाक्ष देखो ना विद्वानां, कहंदा जिहड़ियां कविता रचन लागे लोग, कहंदा कथा की कदर तो मारती इन्होंने। कविता खा गई कथा नूं, चिमटा खा गया राग।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਾਰਖੰਡੇ ਬੁਲਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਖਾ ਗਈ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਚਿਮਟਾ ਖਾ ਗਿਆ ਰਾਗ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਰਗੜ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਮਟਾ ਖਾ ਗਿਆ ਰਾਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾ ਗਈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਰਭਾਗ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਤਾ ਉਹਨੇ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਟਸਐਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਗੜਵੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਥੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਕਥਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਿਆਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ, ਵੇਦਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਵੇਦ ਦੇ ਖਟ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਨੇ ਘੱਟੇ ਜੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਥਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਦੋ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋੜੇਵਾਲ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਧਤੌਂਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਰੋੜੇਵਾਲ ਦੇ ਧਤੌਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਖੇ ਜੀ ਸੰਤ ਕੁੱਟਣਾ। ਲਓ ਛੱਲੀਆਂ ਕੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਭੋਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੁੱਟਣਾ। ਕੀ ਲੱਭੋਗੇ ਇੱਥੋਂ? ਸੰਤ ਸਤਾਏ 3 ਹਾਨ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਸੁਖ ਬੰਸ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਰਾਵਣ ਕੈਰੋਂ ਕੰਸ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 10-15 ਬੰਦੇ ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਸੰਤ ਝੱਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਰਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਪੀਪਾ 16 ਕਿਲੋ, 16 ਸੇਰ ਪੈਂਦਾ, ਸੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ। ਪੀਪਾ ਇੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਰ ਘੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜੂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲੇ ਗਈ ਆਈ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਘੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਘੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਜੰਮ ਜੂਗਾ। ਘੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਜੰਮਦਾ ਇਹ ਘੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਯੂ ਵਰਧਕ, ਆਯੂ ਵਰਧਕ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ।
घी का नाम है आयुर्वेद, पर वो रहा नहीं घी। 17वें 16वें दिन पीपा बेली करता संतां ने, पचाया है, एक सिर रोज़ पचाया है। 16 दिन च एक पीपा घी का अद्धे महीने जी खा गए। शरीर किहा जा बलवान सी। मैं उन्हां दे चरण वेख्या, ऐ लगदा सी जिवें लक्कड़ दे हुंदे आ, जां तां कंडा लग्या नहीं, जे लग्या तां निकलिया नहीं, फिर जुत्ती नहीं सी पाउंदे। सम्मा वाली सोटी ਐਨ तेल तूल लाउंदे रहे। ते वे 17वें 18वें दिन दरवाजे आ गए। ਜਿਹੜਾ आ गया सोटी मारी आ, कहंदा हाय ओ बापू, कहंदे बापू दे नां दा फेर देंगे। उत्थे सिट लिया, दूजा आया सिट लिया, तीजा आया सिट लिया, अद्धा पिंड कुट दिता। ਜਿਹੜਾ भी उत्थों उठे सीधा थाने का मूले पर, उत्थे थाना है। रब लिखो जी बाबा जी ने कुटिया, रब लिखो जी बाबा जी ने कुटिया। एक आया, दो आए, तीन आए, 10 15 आए। उन्होंने कहता वो गल सुनो, मूँह चक्या तुसीं थाने नूं आ गए। वो साध किन्ने सी, कहंदे एको ही। उन्हें फड़ के कागज पाड़ता, पागल किसी जमाने दे ना होण, एक संत 20 नूं कुट दूगा, जाओ झूठे हो तुसीं, निकल जाओ इत्थों। मैं जिहड़ी मिसाल दित्ती है वो ये है भी एक शेर रोज़ का घी खाण वाले मैं वो संत देखे। मेरा भरा सी जिहड़ा 5 किलो की बाल्टी दुध की इक्को वारी जिवें गिलास पीदा पी जाता सी। पर अज हुण घी पचण ते हट गया। बिल्कुल इस तरह ब्रह्म ज्ञान है घी दी न्याय। जे घी नहीं पचदा तो पचदा ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है। वो ब्रह्म ज्ञान सुणाउंदा रहा तो गुरु जी कोल चली गई शिकायत, इनू तां जी कथा ही नहीं आउंदी। वो कहता भाई उस समय से बाद आज तक हम कोई बात वो नहीं करते, हम तो साखियां सुनाते हैं। मैं कहा चंगा रहेगा। इस तरह नानकसर कलेरा दास नूं सद्या महापुरुषों ने, ते उत्थे स्टेज ते महापुरुष जिहड़े उन्हां वल्लों सी, बाबा बिंदर जी छोटे अखरां च कहंदे आ उसनूं, एक कोई बहुत बड़ा सिख कौम का प्रचारक चंगी कथा की। जदों हटिया एक बेबे उठ के कहती बाबे बिंदर तू ही कोई साखी सुखी सुना दे, इनू तो कुछ नहीं आउंदा जिहड़ा बोलदा सी। तुसीं देखो ज्ञान ही पचण ते हट गया। सन्यासी महात्मा बैठा है प्रचार करन लग्या, कोई यह जी विचार आ गई तो खिड़ खस के सारे लोग हस पे। जदों सारे हस पे संत चुप करके बह गया, उदों मैं रोन लग गया। हुण तुसीं दसो भी जे चंगा भला मैं रोन लग जा, तुहानूं शंका तो होगी ना भी इनू की हो गया, भी ये तां इहदे पेट 'च दर्द हो गया, जां इनू हार्ट अटैक होण लग्या, जां ये मरन लग्या, कोई तां तकलीफ होई होगी जिहड़ा रोन लग गया। चंगा भला किते कथा करन वाला भी रोंदा हुंदा है। चुप करिया तो रोई जाता, अखां साफ करी जाता। इन्हें 2-4 बैठे प्रेमी कहने लगे महाराज जी क्या बात है आप रो रहे हैं? वो कहते भाई इसलिए रो रहा हूँ कि हमारे ते कोई असत्य बात कही गई। नहीं नहीं महाराज आप तो सत्य बकते हैं, असत्य बात कह ही नहीं सकते, एक ऐसे कह दिया आपने। कहते भी नहीं नहीं ऐसा है, देखो कहाँ की गल कितनी कम दी है। कहते ऐसा है कि सत तो आपके समझ आने वाला नहीं है। सत तो समझ नहीं सकते तुसी, ब्रह्म ज्ञान तो समझ नहीं सकते। और हमने कोई अजिही बात कहता मैं कर दी है जिहड़ी सुन के तुसी हसे हो, मैं अनुमान ला ले भी थोड़े समझ आ गई गल। जिहड़ी समझ आई बस असत्य ही समझ आ सकता, सत तो समझ नहीं आ सकता। ब्रह्म ज्ञान जो गुरु ग्रंथ साहिब का है ये साढ़े सिरां दे उत्ते दी लंघ जाता है। इस करके कुछ कीर्तन के सन्मान विच मैं 2 अखर कह देना, पर इन्हां चीज़ों नूं बाला ना तो थोड़े कोल पढ़न दा समय, थोड़े कोल दा कित्थे आ, स्थानां 'च रहण वालियां कोल टाइम नहीं रहा पढ़न दा। ये तो विद्या का शौक जिन्हें मैनू थां थां ते भड़काया भिखारी बना के,
जिवें ठूठा फड़ के दर दर ते मंगदा फिरदा ना भिखारी, मैं विद्या दे ठूठा फड़ फड़ के मंगदा फिरिया, साधुआं दे दर दे मंगते बने। फिर भी मैं कोई विद्वान नहीं, कुछ किणका मिलिया, उन्हां दी अनुग्रह, गुरु की किरपा, उहदे नाल भाईचारे च दो अखर सत्कार दे मिलदे आ। पर ये मेरे उन्हां उस्तादां नूं, महापुरुषां नूं, उन्हां नूं सत्कार जांदा, मैनूं नहीं। इस करके आपां सौखी जी गल करांगे। पर कीर्तन हुंदा सी ना, कथा कीर्तन सुखदाई, ये सुख देण वाले। किहड़ा सुख? संसार दा सुख नहीं है, नहीं। ये कहदा सुख है? जे राई जिन्ना क सुख है तो मन जिन्ना दुख लुकिया इहदे विच। सुख के हेत बहुत दुख पावदे, सो की करना है? किसी ने धन च सुख मान लिया, मारे कहते सुख ना ही बहुते धन खाटे। किसी ने बाजे नेजियां दे विच सुख ना ही पेखे निरत नाटे। कोई यात्रा ही कर सुख ना ही बहु देश कमाए, सर्व सुखार। कुछ लोगों ने संतान विच सुख बने, आखे जी पुत्र हो जाए, बख बाची सब कुछ है, एक पुत्र हो गया तो बारे न्यारे न। ये बैकुंठ का कुंडा खोलूगा तेरा पुत्र, वो है ज्यादा कोई किते किते जमदा जिहड़ा कुलां नूं तार देवे। पर हुण विधान के ग्रंथ पंडित निश्चल दास जी की कहते हैं? कहते कर विचार यूं देखिए, पुत्र सदा दुख रूप, सुख चाहत दो पूते, सुख चाहत जो पूतते ते मूड़न के भूप। वो तो मूर्खां दे सरदार ने आखे जिहड़े पुत दो सुख पालन। जो सो को चाहे सदा सरन राम की ले, इत्थे आसो भाई रे सुख साध बन पाया। एडा बड़ा स्थान है, एडी बड़ी इकत्रता है। मेरा ख्याल है जिन्ने लोग आए भी ना, आटे च लूण भी नहीं है। जिहड़े तुसीं इत्थे बैठे हो, मैं देखे हैं गड्डी औखी लंघी है, ये सरोते नहीं है, चंडोल झूटण वाले नजादे, मेले वाले न, मेला देखण आए न, लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि किस्मत काम नहीं करते। कथा कीर्तन दोने अजिहे साधन गुरु नानक के घर में, मुकाबला ही कोई नहीं। पुण्य दान जाप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जोच पैथे पूर्ण काम। कीर्तन के बाबत कहा है, महर्षि व्यास जी लिखते हैं एक जगह, वो कहते वर्तमान जद पापम जद भूतू जद विविछति तत्सर्व निर्धातु गोविंद अनर कीर्तनम। गोबिंद का नाम व्यास जी कहते न एक अग का काम करता है। कहते जी ये की कह दिता तुसीं? कहते हाँ, गोबिंद का कीर्तन जिमें अग लकड़ा लखा मन फूक के स्वाह कर देंदी है, एक छोटी जी चिणग इस तरह किनका एक जिस जी वसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। कीर्तन का एक किणका वर्तमान समय के पाप, भूतकाल भविष्यकाल तिन्ना समयां दे पाप जिहड़े जीव ने कीते कराए, भावें जान के कीते भावें अणजाणपणे कीते, ये सारिਆਂ ਨੂੰ फूकण वास्ते कलयुग दे कीर्तन एक अग का काम करता है। गोबिंद अनल कीर्तन यद फलू नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलू नभते सम्यक कलु केसवी कीर्तनाथ। महर्षि व्यास जी दे कथन है। कलयुग का समा हो और गोबिंद का कीर्तन हो। कहते जेड़ा फल तपस्या करन तो धूणियां तापण तो नहीं मिलता, जल धारे करन तो नहीं मिलता, योग धारण करन तो नहीं मिलता, दसों द्वार दियां समाधियां प्राणायाम करन तो नहीं मिलता, तत्फलू लभते सम्यक बड़ी जल्दी मिलेगा गोबिंद अनल कीर्तनम। कोई जोर नहीं लगता बैठे आराम नाल। इस करके महापुरुषों ने कीर्तन सुनाया आप जी ने, और नाल बेगमपुरे का इशारा दिता है कि रविदास जी ने कहा शब्द उच्चारण किया, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख हुंदा नहीं ताही ठाओ, ना तस्वीस कराज ना माल खौफ न खता न तरस जबाल, अब मैं खूब बतन गह पाई उहाँ खैर सदा मेरे पाई, कायम दैम सदा पासाही दोमना से एक सो आई, आबादन सदा मशहूर। ये सारा शब्द उहाँ गनी बसे मामूर।
त्यों तू सैल करै जू भावै, महर महल न कोट गावै, कहर विदास खलास चमारा, जो हर शहरी सो मीत हमारा। बेगमपुरे दे वासी बाबा महिमा शाह जी, बेगमपुरे दे वासी, करनी कमाई वाले महापुरुष, उन्हों की करनी के अगे सी चुकता है। जिहड़ी आम तुहाडे इलाके दे बच्चे बच्चे दे रसना ते उन्हां दी साखी है, न्याणियां नूं भी पता है जिहड़ी साखी दा, और मैं भी बहुत पुरानी सुखी वो सुनी, बचपन च सुनी, तो फिर जो मैं तुहाडे इलाके च प्रचार करने वास्ते गुरु ने भेज दिता, इत्थे कई बार सुनी, तो अज उहनूं मैं फिर रिन्यू कराया इत्थे भाई जसबीर सिंह जी तो इन्होंने सुनाई सारी। फिर की है कि राजा वीर सिंह गोली मारदा है, महापुरुषों का तरीका देखो शिकार तो हटाने का, कि वह मिर्ग बन के विचर रहे, ये सिद्धि है। अणमा महिमा गर्मा लगमा प्राप्त पराकमा ईसता वशीकरण, ये मुखन 10 गौण, वो सिद्धि के बल नाल ऐसा किया। और फिर जिथे सरोवर है, इत्थे छप्पड़ सी, इत्थे वो जख्म धो रहे हैं, जब देखिया उन्हें कहा हो ये की कर बैठा मैं, कहते कोई नहीं, कुछ नहीं होया, तू चिंता ना कर, खून का रंग लाल है। उन्हें कहा महाराज मैनू बख्श दो, एक खून अजाई नहीं जाएगा राजन, ये खून दे रंग वर्गा, तेनू नाम का रंग चढ़ देंगे। चढ़ दिता ना। फिर उत्तराधिकारी होया महापुरुषों का, रंगरेट होया। इस तरह महापुरुष आदों करते आए। सेवापंथी संप्रदा दे विच एक बुद्धू साहब जी संत होया, बुद्धू साहब उन्होंने नाम से। वो जदों अपने महापुरुषों के कोल सेवा करते सी, ये मैं वचन अर्थां दे दाते महापुरुष जिन्हां दे कोलों अर्थ प्राप्त होए, जिन्हां दी रसना तो, श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले, मैं उन्हां दी रसना तो सुनिया वचन सुनाउण लगा। मैं पढ़िया नहीं होगा कभी, 2 बार ही सुनिया मेरे को। संत आए महात्मा, सीधा सादा लिबास बुद्धू साहब जी का देख के कहते जी ये, कहते जी यह जा आग्याकार मैनू कोई भी शिष्य नहीं मिलया। कहते जी किस तरह, कहते विखाइए, कहते जी विखा दो। बुद्धू साहब हाँ महाराज, कहते मंजा डाल दे, मंजा डाल दे। वो भाई ये ते विछाई भी कर दे, विछाई कर देती, सराहना रख दे, रख दिता, दरी विछाती, चादर विछाती। महापुरुष कहते हुण पै जा ये ते, झट दे के पै गया जी। सारे संत हसन, कहते जी ये की गल है, कहते जे मैं कहना खूह छाल मारे ने 1 मिनट लाउणा, खूह छाल मार दो। आग्या दियां गल्लां करनियां सौखियां ने, आग्या मननी बड़ी औखी है। हनुमान जी नूं एक तो ना साढ़े बीमारी यही जी पै गई ना, आ काहदी करोने की बीमारी है, इदों का भ्याड़ी बीमारी साड़ी सिख कौम नूं चिंबड़ गई। कहो जा सुभाव, लो जी हनुमान नूं जी कह दिता, ये तो हिंदू मत का प्रचार करता रंधावे वाला। जदों मैं उन्होंने बिठा लेना मीडिया के विच, कई बारी कुश्तियां लड़ लिया मेरे नाल इन्होंने, फिर पल्ले कुछ नहीं निकलता। मैं इन्होंने कहना इत्थे आ जाओ, मेरे बराबर बह जाओ, मैं एक तुहाडे मूहरे होगा, एक मेरे मूहरे होगा, तुसीं प्रश्न करो मैं उत्तर दूंगा। कख भी नहीं निकलता पल्ले। ते हनुमान राम भगत है। एक दिन राम जी कहते हनुमान हाँ महाराज, कहते अज मैं एक प्रश्न करना तेरे ते। ना महाराज मेरे राम, मेरे ते कोई प्रश्न नहीं करना, और प्रश्न करना शिष्य का धर्म है, सेवक का धर्म है, उत्तर देना स्वामी का। बड़ा क्योंकि बुद्धिमान सी, सहज बचकन वीर कन ठग शाह और नार की, इतनी बुद्धि जा मेरे तब होए भगत करतार की। बुद्धिमान होंदा है, निर्मल बुद्ध है। नहीं नहीं हनुमान तू गलत समझे हैं,
मैं तेरा निश्चय परखण वास्ते, मैं सवाल करना तेरे ज्ञान च वाधा करने वास्ते। आखिर जी दसो फिर कोई बात नहीं, जे मेरे ज्ञान च वाधा करना करो। कहते बस मैनू ये दस भी दुनिया च सब तो कठिन कार्य की है। कहता लो मेरे राम मैनू डरा ही दिता सी, पता नहीं किहा जा प्रश्न करनगे मेरे राम जी, ये तो बड़ा सौखा जा। राम जी बोले कहते हनुमान सौखा नहीं है। कहते नहीं महाराज लोगों लिए औखा होगा, मेरे लिए कोई सौखा है, बहुता सौखा है। क्यों? कहते मेरी तो जिंदगी है, ये प्रश्न ही तो मेरी जिंदगी है। आखिर जी ये किस तरह? कहते देखो महाराज लंका दे विच सीता की खबर लियाउण वास्ते तुसीं मैनूं हुक्म कीता, काम तो औखा सी। मैं एक छाल मारी लंका च, दूजी छाल मारी वापस आ गया, तो तुसीं उत्थे पुल बनते रह गए, तो मैं छलांग मार के अपना सफ़र निबेड़दा रहा। तुसीं पुल बनते रहे। हर जी से हर जन बड़े, यही नेत भगवान, राम गए पुल बांध के कूद परे हनुमान। हर जी से हर जन बड़े। कहते देखो लोगों को लग्या बहुत बड़ा औखा, मैं देख झट करया। कहते हाँ ये तो ठीक है। कहते फिर पहाड़ चकना सौखी जी गल है किते? सुखचैन वैद ने कह दिता रात रात जे संजीवनी बूटी आउंदी है तो लछमण बच जाऊगा, जे नहीं आउंदी थोड़ा भरा था गया। तुसीं कहा हनुमान ये काम तेरे करन वाला है, मैनू मैं किहड़ा वैद सी, मैनू बूटियां दी सियाण नहीं सी, मैं पहाड़ ही चक लिआंदा। एक पत्थर चकना औखा, मैं पहाड़ चक के लिआया, मैनू कोई औखा नहीं लग्या। मैं इहो जिहियां होर मिसालां भी दे सकदा मेरे राम, पर मैं दसदा हाँ कि सब तो कठिन कार्य पहाड़ चुक के लियाउण दा नहीं, लंका जाण दा नहीं है। सब तो कठोर कम है सेवक बनना। ये बहुत औखा काम है। सबसे सेवक धर्म कठोरा रमैन, ये औखा है। क्यों? रात नूं रात दुनिया कहती है, दिन नूं दिन दुनिया कहती है, पर जे अद्धी रात नूं गुरु ने कह दिता लैणिया वो दुपहरा है, तो सेवक नूं कहना पिया हाँ महाराज दुपहरा है। हाँ कम औखा है। इस करके महापुरुष कहते ये जिहड़ा बुद्धू है ना साडा सेवक, जो कह दिंदे उही करी जांदा है। एक राजस्थान दे विच ब्रह्मचारी आश्रम है, उत्थे 50,000 मारवाड़ी लोगों का इकट्ठ होंदा। मैं हरेक साल जाता रहा, पर हुण नहीं। अज जिद्दां करोना जा होया मैं हट भी गया। मेरा जी इस करके नहीं गया, साडे कनेच वाले भगत जी ते मैं इकट्ठे जाते होंदे सी, वो जोड़ी टुट गई, वो चले गए, तो मैं उदों बाद मैं कहा जी हुण मैनूं छुट्टी दो। पर वो ब्रह्मचारी जी फिर भी याद करते हैं। मैं वेख के हैरान होया उस अस्थान की मर्यादा। जिहड़ा 6 घंटे तो घट भजन करे नूं डेरे चों बाहर कढ़ दिंदे, कहंदे निकल जा तेरी लोड़ नहीं इत्थे, तू 6 घंटे पूरे नहीं कीते। वो भी बोल के 4 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम में उच्चे उच्चे बोल के कर। डेरे दे विच 800 बीघे दे कोई तंबाकू वाला अंदर नहीं बढ़ सकता। दाढ़ी केस रखे हुए, सुच पवित्रता साढ़े ना घरां च रही ना साढ़े गुरुद्वारे च जिहड़ी उत्थे देखी। मेरा बड़ा जी लगता रहा। मैनू उन्होंने जो संत सम्मेलन करते रहे, मैनू वो उन्हों दियां मर्यादा नूं उन्हों दे अनुसार ते सभा का मुखी बना के मैनू हो भी साडे जी मुख मेहमान ये न बोलणगे। चलो उन्हों का प्यार आदर। जदों मैं पहली बार गया, हुण आपां तां गिजे होए हैं बैठ के इस तरह करन, ते गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश हुंदा है, सभा बनया होया है। मेरी अद्धे समान च कुर्सी उत्थे डाती। मैं क्या मैं तो कुर्सी तो ना डिग जा किते। हुण कुर्सी तो डिग्या हुआ देख लो की बनया हुआ है, ये औखी हुंदी है गल। मैं क्या इन्नी उत्ते डालती कुर्सी, महात्मा जी ला दो उत्थे, मैं तो बैठना नहीं। कहते नहीं बैठना पड़ेगा आपको, ये हमारी मर्यादा है, उत्तम भगत यहाँ ही बैठेगा। वो मैं क्या कहता उत्तम भगत है यार, तुसीं धक्के दे जी बहालता मैनू। मैं पहला तो अपने आप नूं संबोधन किया, ऊंचो थित ऊंचो नहीं, ऊंचो गुण कर होए, का कटारी परवाह क्या खगपत हो। वो मना देखी किते ना समझी तू ऊंचे थां बैठा ऊंचा हो गया।
ਕਾਂ भी ਉੱਚੀ अटारी ते बह जाता, गंदगी फोलन वाला हुंदा। मैं अपने मन नूं पहलां चंगी तरह, उदों बाद फिर मैं कहा, वो मेरे कोल नूं आ के कहंदा महाराज जी एक गल है। मैं कहा दसो। कहंदे इत्थे पंजाबी दे विच कथा ना करियो। मैं कहा थोड़ा भला हो जा पै गई मुसीबत, मैनूं तां हिंदी मैं जानदा नहीं सी, इत्थे हिंदी बोलनी पऊगी। मैं कहा बई हुण इत्थे इन्ना इन्हां ने सत्कार दिता, जदों मैं कहे तो मैनूं हिंदी नहीं आउंदी, किसी होर दी पट्टी मेस करन दी तां लोड़ ही नहीं, मैं तां आपे अपनी पट्टी मेस कर लूँ। फिर मैं कहा भी इज्जत तां रखीए हर एक नूं। मैं कहना पशु पंछियों नूं भी इज्जत प्यारी है। मैं कहा भी अपना बचाव करो पहलां तां। ये फौजा वाले पहलां डिफेंस देखते हैं, पहलां अपनी रक्षा करने, उदों बाद पहलां अपनी आप की रक्षा करो फिर बोलो। मैं कहा देखो भाई जितने लोग आप यहाँ आए हैं सुनने के लिए, हमारी बात समझो। सारे आया हो गए राजे। मैं कहा आपने कभी चूरी खाई है? गेहूं के आटे की होती है, रोटी पका के उसमें। हाँ हाँ बाबा जानते हैं, मैं चूरी खाई है। कहते हाँ बहुत स्वाद होती है। कहते बहुत स्वाद होती है। मैं कहा हम आपको एक भाषा की चूरी खवाएंगे। मैनू पता सी मेरे तो पंजाबी बोली जानी है, धक्के ते अपना बचाव करो। मैं जे जी तुहाडे ये भईए ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ वाले ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ जट भी हिंदी होई जी बोली जाता है। मैं अपना कवाई काम चला लिया, फिर हरेक साल चलता रहा मेरा काम। इस करके शास्त्री जी चंगा कीता तुसीं जिहड़ी ये विद्या प्राप्त की है। ये बड़ियां मुसीबतां पईयां ने मैनूं इस विद्या ते। आ एक कमली जी गोरी पै गई उत्थे गल मेरे जहाज़ दे विच, कल्ला ही मैं पग वाला, बाकी सारे गोरे। वो मेरे को पोथियां सी बैग दे चाहे रखियां हुई जिवें नियाणा संभालिया हुंदा बीबियां दा भी, चलो पोथियां बेअदबी ना होवे। वो कमली जी मेरे सिर ते आके खड़ के लागी अबा तबाजा बोलनी, इंग्लिश बोली। जट मचला खदार नूं लैके चलो, मैं समझदा तां सी भी मैनूं की कहिंदे, पर मैं भी मचला हो गया जान के। मैं कहा जिवें चुप कर गया कहण के मूर्ख है। मैं कहा बीबी की कही जानी है तूं? वो कहंदी भी मैनूं समझ नहीं आई। तो मैं क्या फिर तू खड़ी कादे वास्ते जा उधर काम कर अपना। ये भी ना उन्होंने पता लगे ना बाकी का गोरा कोई समझा सके। मैं क्या मुसीबत खड़ी कर दो बराबर दी इनू, ये की टकरूगी? वो पंजाबी टकरिया सी लगी है दुआरे। हूँ वो कहे हथ मार के उन्हें कहा भी ये इंग्लिश नहीं जानता। सैन लैंगुएज दे विच गल कीती, ऐ हथ मार के कहंदी भी इनू उपरले उहदे च रख दे खाने च, इत्थे मर्यादा है, हेठां नहीं रख सकते। मैं हथ मारता इंग्लिश दे। मैं कहा मेरी धार्मिक पुस्तक है, मैं नहीं रखती जी ओके हो। मैं सोचा जी इंग्लिश पढ़िया होंदा काहनूं मगज मारना पैंदा इहदे नाल। मैं फिर वो ठंडी जी हो के मैनू कहंदी भी इंग्लिश नहीं जानता मैनू के। मैं कहा नो इंग्लिश स्पीकिंग, तुम परे परे हो जा मेरे को। एवें फिर सदा कहंदी ओ ऊँ कहता इंग्लिश नहीं आती, नो इंग्लिश स्पीकिंग भी कह दी हो। मैं कहा काम सारन जोगी तो रखी भी है तू जा। ये भाषा सानू सीखनियां पैणगियां, ये महात्मा सीख रहे चंगा। सबसे सेवक धर्म कठोरा की गल सी। वो महात्मा का एक सेवक उत्थे ब्रह्मचारी आश्रम जगन्नाथ जी का, उन्होंने परमात्मा के प्रतख दर्शन किए। गीता का गुटका कोल जदों बरसात आनी ऐ कच्छ च दे के बैठे रहना, मीह उपर पई जाना, गड़े पैण मीह पवे, तपस्या नहीं छड्डी जिन्ना चिर धरू वांगू दर्शन नहीं हो गए। छोटा जिहा दरख्त है वो उम्र बतीत करके हुण तां 820 का डेरा बनया पिया। उन्होंने शिश फौज दे विच सी जिहड़े हुण इस वेले ब्रह्म स्वरूप जी। वो एक दिन महात्मा नूं आके कहंदे जी मैनू कोई नाम की जुगती दसो। कहंदे बड़ा काला पिया। सुतेई संत कहंदा होर जी की करा, इन्ना चिर हो गया। कहंदे इन्ना काला खूह छाल मार। एक सेकंड लाई जाके ड्रम दे खूह छाल मारती। महापुरुषों ने अपनी योग शक्ति का ना उन्होंने झरीट नहीं आउण दी, खूह चों कढ़िया फिर उपदेश। कहण तो भाव सेवक वो है जिहड़ा अपने स्वामी का जो वचन हो गया बने। तो जदों महात्मा जी चढ़ाई करके जिमें इन्हां महात्मा के थां गोली मारन वाला फिर रंग डेट फिर वो आ गया ना स्थान ते, बिल्कुल सेम इस तरह होया। जदों महात्मा जिन्होंने छोटे अखरां च बुद्धू कहते सी, फिर बुद्धू साहिब कहते सी। एक दिन कोई प्रेमी आया आके उन्होंने पूछ रहा, कहते जी बुद्धू साहिब किथे? कहते आ जाओ दिखावा। बांह तो फड़िया,
ਉਂਗਲ करके गुरु ग्रंथ साहिब कहते साहिब आओ है बुद्धू आ खड़ा है। साहिब आओ है बुद्धू आ है। साहिब नूं मिलदा चाहे बुद्धू नूं मिलदा, साहिब नूं मिलेगा चंगा रहेगा। वो कहता हद हो गई है जे महात्मा। रोटी आप पकाउंदे सी डेरे च, झाड़ू आप मारदे सी महापुरुष, बंदगी करदे हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ते एक दिन एक सिपाही आ गया, उन्होंने सियाण नहीं सी, उन्हें कहा भी सेवादार है इत्थे दे महंत दा रखिया वा। वो आके कहंदा भाई प्रशादा छका दे। कहंदा लो जी ताजी लैके आवां? लो चल जी। कहंदे हाँ ताजी ले। वो किते रोटी नूं सेक लग गया वध, काली काली दा काम है जिहा। जद वो सिपाही दे हत्थ ते रखी ने बट के चपेड़ मारी मूँह दे उत्ते। कहंदा बेअकल ना होवे किसी थां दा, रोटी फूक के ले आया। कहंदा इधर भी मार लै, गाहां नूं चंगी तरह ला के लाया करूँगा। उन्हें उधर भी मारी। गुस्सा आया वैसे दो इन्हों नठ के आए सेवा। कहंदे ओ की कर रहे हैं? तेरियां जड़ां पट्टण वाला है, ये महात्मा है डेरे का महात्मा जिहदे चपेड़ा मारे। कहंदा ओ पैरी डिग पिया। बुद्धू साहब जी कहते तू चंगा बंदा, कदे पैरों नूं पहना कदे सिर नूं पहना, तेनों एक पासा तो सांभ, तैं सिर वाला पासा सांभिया, कुट लिया मैनूं होर कुटना होर कुट लै। ये बुद्धू है, इनूं अकल आ जूगी जे होर कुटेंगा। कहंदा महाराज बख्श। वो कहंदा भाई मैं किहड़ा शराब देण वाला, ते बुद्धू बंदे दा कुट खांदे ही हुंदे है। साहिब तो एवें कहण लगे साहिब तो अंदर है, मैं तो महाराज एक बारी कह दो भी बख्शिया। वो कहंदे जब मैं तेनों कहा भी मैं बचने नहीं कोई करिया। कहंदा महाराज जां तां दिओ बख्श, नहीं खुदकशी करके मरूंगा, मैं जी नहीं सकता। एक महापुरुष की मेरे को बेअदबी हो गई, रब की नाराजगी मेरे ते हो जाऊगी। ना 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 ये ना कम करी। मनुखा शरीर बड़ा औखा मिले, आत्म घाती है जत कसाई। उन्होंने कहते बुकल च लैके कहते गल सुनो, ये कहते तैनू तां डेरे का मुखी बनावांगे, पुलिस च भर्ती होया वा। ऐसी चोट लगी, छड्ड के पुलिस महकमे नूं उन्हां संतां दा चाकर बन गया। झाड़ू मारदा, बंदगी करदा, पश्चाताप करदा, प्राश्चित कर्म हुंदा। एक साधारण प्राश्चित हुंदा, एक असाधारण प्राश्चित हुंदा। उहदा प्राश्चित यही सी भी महात्मा की बेअदबी मेरे को हो गई। तो फिर संत भाई चंदन का बेटा, जिहड़ा चंदन का पेड़ा हुंदा ना, जिहड़ा कुहाड़ा वढदा है उहदे मूँह च भी सुगंधी तुन देंदा। संत करे ने बैर कहूँ, सबके हित में बरत अति, तां तन को जब दाहत को तद दे सुखा मित ही। जैसे कुठार कटै तर चंदन, गंध मुकै तिस देती। हेत सर्वात्म हेत है वह, तां पंद कंज नमो निध ही। गोलियां मारन वाले नूं जेड़े सत्कार देण, जेड़े चपेड़ा मारन वाले नूं अपना थां दा उत्तराधिकारी पैदा करन, इस महापुरख महिमा शाही दे नाल लगदी ये विचार सी बाबा बुद्धू साहब जी। तां मैं बेनती की है भी जे मैं बेगुंपरे दे अर्थ करन लग गया, ऊँ तो तुसीं जानदे हो सारे इलाके किहड़ा अज दा वास्ता है। फोकल पॉइंट ते बड़ी देर लंबे समय तो इकट्ठे होंदे आए हैं, किन्ने साथी विछड़ गए अपने ते किन्ने कायम ने तुहाडे विच। इहदे अर्थ जिहड़े ने वो निरोल ब्रह्म ज्ञान है। ये तो घी है, पचना नहीं। फिर आ हुण थोड़ा जिहा घी दे दिओ, बा फिर बार बार टॉयलेट जे बैठूगा उत्थे ही, पचदे ही नहीं। इस तरह ब्रह्म ज्ञान है पचन ते हट गया, क्योंकि ज्ञान के अधिकारी भांडा ही नहीं रहा। ये साधन सी, साधन चार कहें गुरन प्रथमे एक बैराग, पुन विवेक समदम अम सुन मुख बड़ भाग। ये ज्ञान के साधन सी, पहला ताही होगा ना ज्ञान, ये अधिकारी बन गए। इस करके भाई महापुरख दास दे विद्या उस्ताद कहते सी कि भाई जदों भी कथा करनी है माहौल देख लो भी किस तरह का है। कहते एवें नहीं अपनी विद्या घुटनी है कि निमरता रहना। कहते पहाड़ों च नूं रास्ता बनाना परोपकार है, रास्तियां च पहाड़ खड़े कर देने अकल की बात नहीं है। सौखी विचार नूं औखी कर देना
कोई दानशबंदी नहीं। अज के समय दे विच औखी बात नूं सौखी कर देना, ये महापुरखों ने जुगतियां ढंग तरीके दसे। मेरे भाईचारे सारे महात्मा ने, महंत बाबा गुरमुख सिंह जी ने, सारी जिन्नी संत मंडली बैठी है, तो मैनू ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, मैं ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ नहीं। मैं तो थोड़ियां जुत्तियां 'ਚ खड़न ਦੇ ਲਾਇਕ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ स्टेज ਤੇ ਬਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ नहीं। ये ठीक है, ਉਹਦਾ नाम पतत पावन है, जो पै हमना पाप करंता आए अनंता, तो पतत पावन नाम कैसे हो। इको ही भरोसे कि महाराज कृपा करो अपने दर करदा। मैनू वो दिन हमेशा याद रहिंदे ने जदों मैं कलगीधर पातशाह के तख्त ते हजूर साहब रो रो के बचपन च मैं बेनती करदा सी, दाता मैनू अपने घर का कूकर बना लो, मैनू भौंकना नहीं आउंदा, मैनू भौंकना सिखा दिओ, मैनू तुहाडे दर ते बह के कीर्तन कर सकां, मैं कथा कर सकां, मैं तुहाडे दर दा हम कूकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसा। ये तो बद मैं कुछ नहीं। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नो। बल्कि कूकर की बात भी मैं कह के नाल समाप्त करदा। गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे है अपनी मौज विच, ते कुत्ते का सुभाव हुंदा, कई बार गुरुद्वारे आ वड़दे हैं, वो सामने कुत्ता आ गया, सिखां ने नहीं हटाया, दूर थोड़ा जिहा बैठ गया, महाराज कन्नी नूं देखण लग गया, ऐ जीभ ऐ लमकदी है बाहर, कुत्ते की लमकदी आउंदी है, ऑक्सीजन मूँह अड्ड के लैंदा है। ये जिन्ने मांस खाण वाले हैं ना, ये मूँह अड्ड के ऑक्सीजन लैंदे हैं। जिहड़े शाकाहारी ने नासां सी लैंदे, निशानी है। वो पानी पीणगे जिवें नलके की बोकी पानी चकदी है, मचाके जे मार के, समझ लो भी ये मांसाहारी है। ਜਿਹੜੇ ਡੀਕ ਲਾ के पानी पीण समझ लो शाकाहारी है। ये हुण तुसीं निर्णय करना भी किहड़िਆਂ 'ਚ रहना है, तुहानूं रब ने किहड़े पासे बनाया, ये आप निर्णय करी देने, किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं। गुस्सा करते हैं जिन्हां दे चस्का पै गया, वो बहुत गुस्सा करते हैं भी ये नहीं प्रचार करना चाहिए। खैर मेरे नाल एक भाई कहंदा सी, कहंदा ये तां साधां वालीਆਂ गल्लां ਜਿਹੜੇ तूं करदा है। मैं कहा होर, कहंदा चंगा ऐं दस बई ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂੰਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੂੰਛ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਉਕਣ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਕਣ, ਪੂੰਛ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਈ ਸੀ। उदों जिहा जिहा जवाब हुंदा सी। कहण तो भाव शाकाहारी ते मांसाहारी जिन्हें भजन करना है, परमात्मा नूं प्राप्त करना है, उहदे लई सतोमी बिरती वास्ते सतोमी खाने, सतोमी पहरावा रखना पएगा। सतोमी बिरती उहदे सतो सियाज ते ज्ञान तां होऊगा क्या। मैं ये गल कह के समाप्त करदा। गुरु साहिब जी प्रसादा छकण लगे, सामने कुत्ता नज़र आ गया। महाराज ने जदों देखिया कहंदे हो ये बेचारा भुखा है, मेरे सिख ने किसी ने रोटी नहीं पाई होनी। महाराज ने रोटी दे 2 हिस्से कर दिते, 2 रोटियां सी, एक तो पई है थाली च, एक रोटी दे 2 हिस्से करते, भगा के मारी कुत्ते दे अगे। कुत्ता कलगीधर दा शुकराना करके खाण लग पिया, ते अद्धी रोटी पई है, ते भाई नंद लाल बैठा सी पैंदा वाले पासे। गरीब नवाज हाँ महाराज। भाई साहब की कहंदे हो। सच्चे पातशाह एक कुत्ते नूं रोटी पा दित्ती, ते एक होर कुत्ता भी तो बैठा तुहाडे पैंदा वाले पासे, जिहड़ी अद्धी रहिंदी है मेरे वाले पासे फेंक दो। मारे कहंदे मैनू तो दिखदा नहीं होर कुत्ता कोई, ओ सामने कुत्ता। कहंदा जी भाई नंद लाल कहंदा मैं कुत्ता तुहाडे दा। महाराज साहब जी चेहरा लाल हो गया। भाई साहब तू कित्थों कुत्ता बन गया। नहीं, कुत्ता वो हुंदा जिहड़ा मंगे ना, जिहड़ा मंगे वो कुत्ता नहीं हुंदा। तू मंगी है रोटी, उन्हें मंगी नहीं सी करके वो कुत्ता है, तू नहीं आ। धा मारी, चरण फड़ के कहंदा गरीब नवाज अज पता चलिया तेरे दर दा कूकर होना भी माण दी बात है, मैं तो कूकर भी नहीं बन सकिया।
फूकर कहंदियां भी शर्म आउंदी है, बड़ी बात है। गुरु कृपा करे, ये निमरता महाराज साहब जी सानू बख्श देण। आओ अगला प्रोग्राम प्रबंधकों के कोलों, महापुरुषों के कोलों सरवण करो। दास नूं आग्या बख्शो, क्योंकि भाई गुरदास ते कारज जिहड़ा अरंभिया होया है, वैसे तो महाराज ने पूरा करा लिया, पर थोड़ी बहुत प्रैस दे भी जाण तो पहलां ओहदा थोड़ी बहुत जिथे कोई रहिंदी आ कमी, तो वो सारा प्रूफ पढ़ के प्रिंट होके आ गया साडे कोल। ये जल्दी दे के 2 महीनों जी भाई साहब जी की रचना तुहाडे हत्थां 'च होएगी महात्मा दे, और महसूस करोगे भी जो कुछ महाराज साहब ने कृपा करके लिखवा लिया, पढ़न वाले महसूस जरूर करनगे। मैनू निश्चा है, क्योंकि मैनू उन्हां महापुरखों से पूरा माण है। विद्या मारतंड संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरख, जिन्हां की रचना तो ये व्याख्या प्राप्त हुई, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ आधार बना के वो पोथियां लिखियां गईयां। लिखत का कम रात दिन 5ਵੀਂ रुत है जी, वो सारी लिखत रूप च आ गई है, प्रैस दे विच छप रही है। तो गुरु कृपा करे होर जिहड़े कोई सेवा महाराज बख्शन गए तो वो शरीर करता रहेगा। पर यह है भी इस उम्र दे विच आके तो महकमा भी रिटायर कर दिंदा, पर साडे वाला भाईचारा नहीं रिटायर करता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ नौजवान ये महापुरुष, इन्हां नूं असीं मूहरे करिए, असीं पिछे बैठ के कथा सुनिया करिए। हुण साडे च हो गए ਇਹੋ ਜਿਹੇ महात्मे विद्वान, होर पैदा हुण। गुरु कृपा करे, भुलां चुकां दी खिमा करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की